This video lecture is strictly meant for understanding the concept and clearing doubts of distance learner enrolled in IDOL University of Mumbai. Today, let us discuss the third chapter, that is problems of rural consumers. And the objectives of this particular chapter is to discuss the problems relating to adulteration and its problem prevalent among rural consumers, to discuss short weight and measures among rural consumer, the kind of problem they are facing relating to short weight and measures, to explain and explore unfair warranties and guarantees which they receive in the market, to discuss about the unreasonable pricing and its effect on the growing problem encountered by rural consumer, to analyze the challenges and future of rural marketing. So, first of all, let us understand who is the rural customer and what are its peculiarities. So, rural customers they have low income, low purchasing power, low literacy rate. Therefore, they suffer from low standard of living. But slowly and gradually, as we have discussed earlier, that this picture is changing. Rural consumer is gaining awareness, and this awareness is due to adoption of lifestyle following the urbanization, and also slowly and gradually we can say that mass media and education is bringing these differences. But nevertheless, the low literacy levels in rural areas leads to the problem of communication also. And since print media has less utility compared to other media of communication, transportation is also one of the biggest challenge and constraint for rural markets we have discussed so far. And so these problems which are related to the other marketing problem which comes under the form of adulteration, false weights, and unfair warranties and unreasonable pricing, so far and so forth, these are the problem which are arising out of these grave problem which we have discussed, like literacy rate is low, transportation is the problem, they can't have a reach to print media and something like that. So let us one by one discuss each and every problem in detail, their pros and cons, and what are the peculiarities of rural consumers which makes them to face such kind of problems. So what is adulteration? Now adulteration, मिलावट जिसको हम लोग कहते हैं, तो adulteration is very serious problem posing serious health risks to many people in India. And in every product we must say that we have seen more or less the adulteration takes place. The very famous example could be the in this festival season everybody know that sweets people do eat and distribute sweets, तो हमने देखा है काफी बार न्यूज चैनल्स पे कि कैसे इन स्वीट्स में अडल्ट्रेशन होता है और यूरिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है टू मेक दी sweets, and this could be having a very serious health risk in India. So sinners have not spared even infants milk products, मतलब छोटे बच्चों के मिल्क प्रोडक्ट्स में, मेडिसिन में, ग्रोसरीज में, सब में मिलावट देखी गई है. फूड तो हमारी सबसे बेसिक नेसेसिटी है, हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक नीड है वो फूड ही है. प्योर फ्रेश और हेल्दी डाइट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ नो वंडर टू से कम्युनिटी हेल्थ इज़ द नेशन हेल्थ, नेशनल वेल्थ. यस, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा नेशन और उसकी वेल्थ कौन डिटरमाइन करता है, मतलब उसके इसमें जो प्रोग्रेस होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो किसी भी कम्युनिटी या नेशन के हेल्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ ये नोशन कॉमन है. Among men's everyday needs, food plays a major sustainable role. From simple dish to most elaborate haunting cuisine, food preparation is varied and rich as men's taste.
इसमें हम लोग ये कह सकते हैं व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन। तो फूड अडल्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ एडिंग और मिक्सिंग poor quality, inferior, harmful, substandard, useless और unnecessary substances to food. फूड अडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें मिलावट की जाती है घटिया क्वालिटी फूड प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की, इंफीरियर क्वालिटी इनपुट्स की, हार्मफुल जो है हमारे हेल्थ के लिए ऐसे इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, सब स्टैंडर्ड्स चीज़ों की मिलावट की जाती है खाने पीने के इसमें पदार्थ में, यूजलेस और अननेसेसरी सब्सटेंस जो सिर्फ फूड को बढ़ा देते हैं इन क्वांटिटी लेकिन उनमें कोई भी ताकत नहीं रहती है, इसको हम लोग कहेंगे, इस एक्ट को हम लोग कहेंगे फूड अडल्ट्रेशन। और ये एक्ट क्या है? स्पॉइलिंग नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो फूड आइटम्स में, मेडिसिन में, वेजिटेबल्स में, पेस्ट में, क्रीम्स में, प्रोडक्ट्स ऑफ फेमस ब्रांड्स में, सब में मिलावट आजकल पॉसिबल है और हो रही है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग जब भी ये कंज्यूम करते हैं मिलावटी पदार्थ तो हेल्थ इश्यूज कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं? अपसेट स्टमक से और अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से। हम लोग ये कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग या फूड इंटॉक्सिकेशन, जो भी हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं। More than 20% patient who visit doctors or any clinic or any hospital are those who had consumed such adulterated food and food products, we can say. ज़्यादातर केसेस फूड पॉइजनिंग के जो पहुंचते हैं वो इनके वजह से ही पहुंचते हैं क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट है वो अडल्ट्रेटेड है और इसकी वजह से लोगों के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अडल्ट्रेटेड फूड बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं नुकसानदेही है क्योंकि वो टॉक्सिक है, इट कैन इफेक्ट हेल्थ, इट कुड डिप्राइव न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वर्स्ट पार्ट अडल्ट्रेटेड फूड का ये है कि एक्सट्रीम केसेस में वो कैंसर भी कॉज करता है और वेरी वेरी हार्मफुल फॉर सेंसिटिव पीपल लाइक प्रेग्नेंट पीपल। अगर ये ऐसा अडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम करें तो इवन पुअर फीटस ग्रोथ, मिस कैरेजेस और वुमेन ऑल्सो डाई वाइल डिलीवरिंग बेबीज। ये हमने देखा है कि मेडिसिन में मिलावट की वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल। फूड अडल्ट्रेशन इज वन सीरियस चैलेंज इन इंडियन सोसाइटी और ये चैलेंज जो है सबसे बड़ा चैलेंज है और ये इसका सबसे दुखदाई पार्ट ये है कि दिस इवन नॉट लिविंग द स्मॉल बेबीज मिल्क प्रोडक्ट्स और लाइफ सेविंग मेडिसिन भी, काफ़ी सारी इंजेक्शंस दवाइयों उनमें भी मिलावट होने के कारण ये एक बहुत बड़ा थ्रेट देखा गया है आजकल। Adulteration of food is menace to the society and perpetrators cannot be left out lightly। इनके लिए जो मिलावट करते हैं पैसा कमाने के लिए उनके लिए सज़ा होनी चाहिए और वो सज़ा के लिए कानून और जो हमारा लॉ सिस्टम है वो क्या कहता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसे केस में जब भी हम लोग बात करते हैं इन सब चीज़ों की तो व्हाट वी have observed is that after arrival of fast food concept and online ordering system, more specifically the consumers really do not, nowadays they don't bother enough ki what is the quality of food which reaches them। सो व्हाट हैपन्स इज दैट क्योंकि कंज्यूमर खुद ही एक तरह से हम कह सकते हैं इतना लापरवाह हो चुका है कि उसे कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है और इसके वजह से व्हाट हैपन्स इज कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वी कैन से कंज्यूमर का जो लेजीनेस है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने क्या किया है आजकल, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आजकल इस सर्व करना फूड चालू किया है कि जो बहुत ही अडल्ट्रेटेड है बिकॉज वी हैव सीन दैट people hardly they care about their health but they are only crazy behind running behind the food which is giving them temporary kind of temporary kind of we can say taste। so what happens is this, the quality suffers. When quality suffers, what happens that nobody is caring what type of ingredients are added to food,
एंड वाई डू कंपनीज एंगेज इन अडल्ट्रेशन? क्यों कंपनीज और जो कॉरपोरेट्स हैं जो फूड मेकिंग बिजनेस में है, या रेस्टोरेंट जो फूड मेकिंग फूड सप्लाई बिजनेस में है, वो क्यों परवाह नहीं करते हैं और वो क्यों एंगेज करते हैं अडल्ट्रेशन में? Their one and only intention is that they want to increase their profit margin and they want to earn big in very short time. So just to make profit and money, they risk the lives of other people, which is totally unethical also. Now what government needs to do and what it is doing, the central government on its part is trying everything possible to control this particular crime. In India, we can say the Ministry of Health and Family Welfare is completely responsible for providing सेफ फूड टू द सिटीजन्स एंड द प्रिवेंशन। ये जो एक लॉ है, एक्ट है, ये हमें अच्छे से याद करना है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द प्रिवेंशन ऑफ, और ये एमसीक्यू में भी आता है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 हैज लेड डाउन गाइडलाइंस टू प्रोवाइड प्योर एंड होलसम फूड्स टू कंज्यूमर्स। The act was last amended in 1986 to make punishments ज़्यादा सीवियर और कंज्यूमर को और एम्पावर करने के लिए। और गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्लान भी कर रही है कि ये पनिशमेंट एनफोर्स हार्शर हो जाए, बिकॉज जो कंज्यूमर की हेल्थ है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है, और जो कानून है वो भले ही ऑन पेपर बना हुआ है लेकिन लोगों को सज़ा नहीं होती है इसके केस में। इसके लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, और ये भी एक एफर्ट्स है। दी FSSAI हैज़ इशूड ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट which was passed in 2006, but the regulation was notified only in 2011. You can see the act was passed in 2006 but regulation were notified in 2011, और इसमें इनके अमेंडमेंट के हिसाब से FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, उन्होंने प्रपोज किया टू इंक्लूड न्यू सेक्शन टू क्रैक डाउन ऑन फूड अडल्ट्रेशन, की फूड अडल्ट्रेशन के ऊपर और ज़्यादा बारीकी से सोच विचार करने की और इस कायदे के हिसाब से फूड क्वालिटी डिटरमाइन करने की कोशिश की गई थी अंडर दिस एक्ट। Now people need to be very cautious when they buy from stores and malls। खासकर मॉल्स में भी ये देखा गया है कि जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सेल होते हैं, बिकॉज मॉल्स के पास बफर स्टॉक बहुत होता है, वो रिलीज करने के लिए एवरीथिंग इज ऑन विंडो डिस्प्ले। So they should check, we as a consumer, we should check for the standards like ISI standard mark, egg mark for agricultural product, FSSAI standard mark, packaging का date of expiry, ये सब। क्योंकि अगर ये सब प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड मार्क्स अगर किसी प्रोडक्ट पे नहीं है तो वी कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि ये सब क्वालिटी टेस्टिंग मेजर्स हैं जिससे कोई प्रोडक्ट और फूड मेकिंग जो आइटम है वो गुजरता है। तो गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन डीलिंग स्ट्रिक्टली विद दोज हु एंगेज इन फूड अडल्ट्रेशन। अगर वो ये सब क्वालिटी टेस्टिंग से ये सब मार्क, स्टैंडर्ड मार्क नहीं लगाते हैं अपने पैकेट्स पे, तो गवर्नमेंट को उनके साथ स्ट्रिक्टली, और जो पकड़े जाते हैं ऑफकोर्स फूड अडल्ट्रेशन में, और इसके वजह से हाइकिंग द पेनल्टी इंक्लूडिंग मेकिंग एनालोगस टू अटेम्प्ट टू मर्डर। एक तरह से ये किसी का मर्डर करने जैसा, अटेम्प्ट टू मर्डर करने जैसा क्राइम ही है, क्योंकि देखा गया है कि एनॉर्मस फूड टॉक्सिक होने की वजह से, अडल्ट्रेशन की वजह से फूड टॉक्सिक हो जाता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। So it is equally important to regularly check food stuff for adulteration and ensure the speedy trial through specific fast track courts। तो काफ़ी सारे कंज्यूमर कोर्ट्स में, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स में भी ये सब शिकायतें दर्ज होती हैं, नॉट ओनली इन केस ऑफ फूड products but also in case of many other FMCG and durables, that how consumers are cheated। but adulteration जब भी बात होगी, it would be mixing and adding harmful things to the food। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ग्रेव प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, वो है शॉर्ट वेट एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स आर यूनिट ऑफ मेजर। शॉर्ट वेट एंड मेजर्स मतलब कि कंज्यूमर को कोई चीज़ फॉल्स वे के साथ देना, प्रॉमिस करना कि ये ज़्यादा वे की है लेकिन उसमें ज़्यादा करके कम वेट की चीज़ और मेजर की चीज़ देना। तो ऐसे केस में वेट्स एंड मेजर्स में क्या होता है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। and we have seen that
weights and measure may also be referred to various weights and measures acts. इंटरनेशनल ब्यूरो, ये यहाँ पे याद करने जैसा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब्सिडियरी, इन्होंने कुछ कानून बनाए हैं रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स. सो यूनिफॉर्म अगर वेट ऑफ यूनिट ऑफ वेट नहीं लिया जाता है और प्रोडक्ट फॉल्स वे के साथ, फॉल्स मेजरमेंट के साथ कंज्यूमर को दिया जाता है शॉर्ट इन क्वांटिटी, तो उसको हम लोग कहते हैं ये एक ऐसा क्राइम है जो आता है शॉर्ट वेट एंड मेजर्स में. वेट एंड मेजर्स regulatory officials set standards and enforce uniform procedure to verify weight, volume, length, and count, ensuring that consumers get the quantity that they pay for and the business sell the quantity that they advertise. जितने भी business organization किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी की जब भी बात करते हैं, क्वालिटी तो खैर रिलेटेड है अडल्ट्रेशन के साथ, क्वांटिटी रिलेटेड है आपके वेट एंड मेजर इसके साथ, जो फॉल्स वेट एंड मेजर्स हैं उस प्रॉब्लम के साथ. मोस्ट यूके वेट्स एंड मेजर्स लेजिस्लेशन इज एनफोर्स्ड बाय, ये यूके की बात की गई है, इट इज एनफोर्स्ड बाय लोकल अथॉरिटी ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स और द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी इन नॉर्दर्न आयरलैंड. For business specific advice on complying with regulations, yes, हम ये कह सकते हैं कि इन यूके ये सब जो वेट एंड मेजर्स हैं ये लेजिस्लेशन एनफोर्स किया जाता है लोकल अथॉरिटी ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ. तो ऐसे केस में वॉट एवर वी हैव सीन दैट वॉट parameters comes in short weight and measures, whensoever we have to remember this thing, that there are some practices which are seen to give the false weight, false volume, false length and count to the consumers, for which consumer is actually paying. And if business organization is advertising that quantity, business organization should fulfill and should produce and sell that much quantity to customers. थर्ड मेजर प्रॉब्लम है अनफेयर वारंटीज एंड गारंटीज. जब भी हम लोग बात करते हैं अनफेयर वारंटीज एंड गारंटीज की, तो ऐसे केस में इट इज वेरी मच इसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन वारंटीज एंड गारंटीज फर्स्ट ऑफ ऑल. So in rural market, a shopkeeper unfair trade practices refers to the use of various deceptive, fraudulent or unethical methods to obtain business. Unfair business practices include misrepresentation, false advertising or representation of goods and services, tied selling, false price, free price or gift offers, deceptive pricing and non-compliances with manufacturing standard. तो unfair trade practices में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वो आती है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करना, प्रोडक्ट डिस्प्ले करना या उसकी पॉपुलैरिटी करना, गलत एडवर्टीजमेंट, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट या फेक क्लेम्स करना एडवर्टीजमेंट में, टायर्ड सेलिंग करना, मतलब एक मोनोपोली जैसा होता है, क्रिएट करना अपनी ही लॉबी, और फॉल्स फ्री प्राइस और गिफ्ट ऑफर्स का अनाउंसमेंट करना, डिसेप्टिव प्राइसिंग, प्राइसिंग में चीटिंग करना, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है जो हमने देखा ISI एगमार्क, उनको फॉलो नहीं करना. Such acts are considered unlawful by statute through the कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो ये कहता है कि कंज्यूमर्स को पूरा हक है कंपेंसेशन लेने का और पुनिटिव डैमेजेस को क्लेम करने का अगर कोई भी बिजनेसमैन पकड़ा जाता है फॉलोइंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो ऐसे केस में रूरल पीपल नाउअडेज आर नो लॉन्गर इग्नोरेंट. ये हमने पहले भी देखा है कि रूरल पीपल आर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर having the awareness relating to their rights, and today rural buyer is not only having purchasing power, but he is also better informed about the price and demand of the product for which money is being spent. They are looking out for better quality, durability, multi-utility of products and services offered in the market to them. Like you can say that all and all rural consumers are now gaining the, you can say, the enlightenment, and they are aware about what they need from the market. So they are looking for better quality, durability, utility of product.
क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे शामिल हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली क्यों कंज्यूमर्स के जो फैक्टर्स कौन से हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनकी अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। नाउ सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, जो सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये सब सोशो कल्चरल इकोनॉमिक सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में आते हैं। The following elements play a big role in decision making stage, so as to what people will buy and how they will consume. So if an item with that you have bought is faulty, you have right to return the item to retailer and request a repair, replacement and refund. अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ चीटिंग होता है या फॉल्स प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो होते हैं, तो उसको पूरा हक है रिटेलर को रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिफंड मांगने का। ये कंज्यूमर एक्ट भी कहता है। दीज राइट्स आर नोन एज योर स्टैट्यूटरी राइट्स, ये आपके खुद के लीगल राइट्स हैं, आप कह सकते हो। एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल फर्नीचर अप्लायंसेस जो कि वारंटी और गारंटी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे मेन बात जो है, जो थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम, वो है अनफेयर वारंटीज एंड गारंटीज का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वारंटीज और गारंटीज एक्चुअल में होते क्या हैं, डिफरेंस क्या होता है इनमें। तो सबसे पहला अगर हम लोग डिफरेंस देखें, दोनों वारंटी और गारंटी हम लोग बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब हार्डली वी नो द डिफरेंस, बट गारंटीज आर यूजुअली फ्री एंड ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर। अगर कोई टू व्हीलर बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, तो गारंटी कार्ड्स देते हैं, वो कहते हैं फ्रीली देते हैं और कहते हैं कि ये इतना इतना टाइम चलेगा, एंड दीज आर यूजुअली प्रोवाइडेड फ्री एंड ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर ओनली, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। वारंटी यूजुअली कॉस्ट मनी एंड मे बी ऑफर्ड बाय द शॉप वेयर यू आर बाइंग द प्रोडक्ट। वारंटी उस शॉप से आपको मिलता है जहां से आपने प्रोडक्ट बाय किया, तो वो वारंटी किस सिलसिले में देता है, वो वारंटी देता है कि आपको हम लोग उसका इंश्योरेंस देंगे, आपको वो आइटम जो है गारंटी पीरियड में रिपेयर करके देंगे, मेंटेन करके देंगे, और ऐसे केस में जो भी डैमेजेस हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर रिकर किया कंज्यूमर ने, तो उसको रिपेयर भी करके देंगे। तो ऐसे केस में वारंटीज यूजुअली कॉस्ट मनी एंड मे बी ऑफर्ड बाय द शॉप वेयर यू आर बाइंग द प्रोडक्ट। सो योर स्टैट्यूटरी राइट्स अप्लाई टू द प्रोडक्ट्स यू बाय। A warranty or guarantee can give you extra protection but it does not replace your statutory rights. अगर वारंटी गारंटी भी मिला, उसके बावजूद भी ऐसे लगा कि फॉल्स प्रोडक्ट या शॉर्ट वेट के साथ आपको कोई चीज सेल की गई या चीप क्वालिटी की सेल की गई है, तो जरूरी नहीं है कि गारंटी वारंटी पे रिलाय करना, उसके बावजूद भी आप अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हो और आप फाइट कर सकते हो, and you can apply to the act, you can go as per the act. A warranty may be offered by retailer at extra cost and acts as the sort of insurance policy, एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा वो एक कवर देता है। इट कवर्स द आइटम और सर्विस आफ्टर द मैन्युफैक्चरर्स गारंटी पीरियड। आफ्टर गारंटी पीरियड खत्म हो जाता है तो वारंटी में ये लिखा होता है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करने के साथ वी आर गोइंग टू गिव द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वारंटी में इंक्लूड paying some of the cost of repair if the products breaks or become faulty. Warranties may also offer extra cover for accidental damage. तो कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपके एक्सीडेंटल डैमेज हुआ है तो वारंटीज के साथ आप उसको रिपेयर करा सकते हो। वारंटी इज completely ऑप्शनल, यू शुड केयरफुली चेक व्हाट द वारंटी कवर्स एंड वेदर यू नीड टू बाय इट और नॉट। तो वारंटी आपके ऊपर है, निर्भर है। गारंटी तो खैर मैन्युफैक्चरर दे ही रहा है, लेकिन वारंटी आपको चाहिए कि नहीं, यू योरसेल्फ हैज टू डिसाइड कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ अगर मिल रही है तो आप उसको अपने डिस्क्रिशन, कंज्यूमर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से उसको अवेल कर सकता है। If a product or service comes with the guarantee and or you are offered a warranty at extra cost, you should read the terms and condition carefully. Yes, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूरल कंज्यूमर्स के लिए कि वो सब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं वारंटी गारंटी में उसको अच्छे से पढ़े। तो if you need to do anything to activate it, for example, you may need to fill
fill out the registration card or send it to manufacturer to activate guarantee. और ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी बार गारंटी तभी अप्लाई होती है जब भी आपको कोई एक प्रोसीजर दिया जाता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करना होता है, मैन्युफैक्चरर को सेंड करना होता है, तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस में आ जाता है. What exactly is covered? For example, does it cover party only? Is the cost of labor included? Will you be offered a replacement? तो ये सब चीज़ें आपके गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड में दी जाती हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें फ्री होंगी और क्या क्या चीज़ें पेड होंगी. तो ऐसे केस में आपका रिप्लेसमेंट और प्रोडक्ट जो रिपेयर हो रहा है उसके बारे में भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए जाएंगे. Who will be honoring guarantee or warranty? This may be seller, manufacturer और थर्ड पार्टी. ये भी क्लियर हो जाएगा. हाउ डू यू मेक क्लेम? अगर आपका प्रोडक्ट फॉल्टी निकलता है तो आपको क्लेम के लिए, आप उसको रिप्लेस करने के लिए, रिफंड करने के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते हो. हाउ लॉन्ग विल दी कवर लास्ट? कब तक ये वारंटी गारंटी पीरियड चलेगा? तो टर्म दिया जाता है इसमें. आर देयर जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस टू इट? येस, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट किसी और देश से हम लोग लाए हैं तो क्या जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स इसमें आ जाएंगे. तो क्या ये चीज़ दूसरे कंट्री में भी कवर करेगी अगर हम उसे लेके जाते हैं या हम लोग बिलोंग करते हैं किसी और नेशन को. विल इट बी एक्चुअली कॉस्ट फॉर रिपेयर्स अंडर अ वारंटी और इज इट पेइंग एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल कवर? क्या ये रिपेयर के लिए अगर हमें चाहिए तो क्या हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा या फिर कुछ फ्री में हमें मिलेगा. इज देयर अ सर्टन अमाउंट यू मस्ट पे एंड बैलेंस टू बी कवर्ड बाय वारंटी? ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. वुड इट बी चीपर टू रिप्लेस रिपेयर द आइटम रेदर देन बाय एन एक्सटेंडेड वारंटी? क्या अगर और ज़्यादा आपको एक्सटेंड करनी है वारंटी तो क्या वो प्रोडक्ट इतना cheaper होगा to repair or replace, and is the item covered under the home insurance? तो ऐसे केस में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंश्योरेंस कवर्ड ही होते हैं ऑल टुगेदर, व्हीकल्स एंड ऑल. तो ऐसे केस में गारंटी और वारंटी जो है वो क्या कहते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यूजिंग, यू शुड फर्स्ट कंप्लेन टू द गारंटर. सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है गारंटी और वारंटी रिलेटेड, आपको पहले रिटेलर जहाँ से आपने खरीदा है, मैन्युफैक्चरर को आपको कंप्लेन करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको उस पर एडवाइस मिलेगी. इफ़ यू कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली विद द सेलर या शॉपकीपर जिससे आपने खरीदा है एंड यू आर नॉट हैप्पी with their after sale services, you can also consider the claim against seller using small claim procedure. तो एक small claim procedure होता है गारंटी वारंटी के बाद भी अगर आपकी समस्या रिजॉल्व नहीं होती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज अनरीजनेबल प्राइसिंग का प्रॉब्लम. अभी अनरीजनेबल प्राइसिंग का प्रॉब्लम क्यों आता है? जब भी हमें ये मालूम पड़ता है कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेके जिसका एक्चुअली प्राइस एस्टिमेट किया जाए तो कम आता है. तो ऐसे केस में अनरीजनेबल प्राइस मीन्स व्हेन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वर्जिन मटेरियल कॉस्ट. मतलब अगर देखा जाए तो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ही कॉस्ट है एज कंपेयर टू मटेरियल कॉस्ट. अनरीजनेबल प्राइसिंग इज नॉट अ फैक्टर व्हेन मिनिमम कंटेंट स्टैंडर्ड आर स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट ऑफ वर्क प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट बिकॉज प्राइस एस्टिमेट्स will only be obtained from vendors who can supply products meeting recovered material content requirement. इसका आप सिंपल सा मतलब ये है कि जितना भी कोई चीज़ प्रिपेयर होती है उसका मटेरियल कॉस्ट से भी ज़्यादा अगर कोई चार्ज करता है तो ऐसे केस में प्राइस एस्टिमेट्स हम लोग वेंडर से ले सकते हैं जो कि सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट्स रिलेटिंग टू दी मीटिंग रिकवर्ड दी मटेरियल कंटेंट रिक्वायरमेंट. तो ऐसे केस में अगर अनरीजनेबल प्राइसिंग कोई चार्ज कर रहा है इवन आफ्टर गारंटी वारंटी पीरियड भी अगर रिसाइक्लेबल product cost ज़्यादा है as compared to material cost, we can say the problem of unreasonable pricing has occurred. Now next one we have challenges and future of rural marketing. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स से हमने डिस्कस किए. द प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड इज अडल्ट्रेशन, मिलावट. प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इज शॉर्ट वेट एंड मेजर्स. इसमें फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट
1954 देखा, कंज्यूमर एक्ट 1986 देखा, शॉर्ट वेट एंड मेजर्स में भी हमने ये इंटरनेशनल ब्यूरोज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और आईएसओ और उसके सब्सिडियरी का रेगुलेशंस देखे। अनफेयर वारंटीज और गारंटीज में भी हमने देखा कि कैसे गारंटी और वारंटी अलग अलग होते हैं एंड हाउ दे आर बीन क्लेम्ड बाय द बायर्स। एंड लास्ट, अनरीजनेबल प्राइसिंग, हद से ज़्यादा प्राइसिंग, मोर देन द इनपुट कॉस्ट, तो उसको वो भी हमने देखा। नाउ वी आर कंसिडरिंग व्हाट, now we are considering the challenges and future of rural marketing. Now when we talk about challenges and future of rural marketing, what comes in into the rural marketing, the peculiarities of market and rural consumers pose challenge to the marketer in reaching them effect. सबसे पहला जो मेन चैलेंज है वो है एक्सेसिबिलिटी। वाई एक्सेसिबिलिटी? रूरल मार्केट्स ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ रूरल मार्केट्स इनएक्सेसिबल है आज भी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की वजह से, कच्चा रोड्स के वजह से, वेदर कंडीशंस के वजह से, रिमोट प्लेसेस के वजह से, और वहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो पुअर होने की वजह से, तो दे आर नॉट रीचेबल और एक्सेसिबल। फिजिकली तो दिक्कत है ही, और इवन मीडिया वाइज भी हम लोग देखेंगे कि अप्रोच जो है, जो एक्सटेंसिविटी या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो nearly 80% of villages in the country are not connected by well constructed roads. They have कच्चा roads, जिसके वजह से दिक्कत होती है मूवमेंट में। वेयर हाउसिंग भी एक प्रॉब्लम है। स्टोरेज फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है, स्टोरेज फंक्शंस एडिक्वेट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज इज अवेलेबल नहीं है, सीजनल प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, और जो भी वेयर हाउसेज या गोडाउन्स है उनकी हालत ठीक नहीं है स्टोर करने के लिए गुड्स। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम हम कहेंगे, वेरी मेजर एंड वास्ट प्रॉब्लम रूरल एरिया पीपल आर फेसिंग, देन रूरल मार्केट इज फेसिंग। then we have underdeveloped people and underdeveloped market, because rural society जो है वो underdeveloped है और टेक्नोलॉजी उन तक पहुंची नहीं है, तो मार्केट एरिया जो है वो बहुत ही कम देखेंगे तो अंडरडेवलप्ड है और टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैंने ये भी कहा, इनएडिक्वेट मीडिया कवरेज, मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, मैसेजेस में फ्रॉम रूरल पीपल, और इसके वजह से क्या होता है कि पावर, बहुत सारे विलेजेस में पावर सप्लाई नहीं है, टेलीविजन सेट्स जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं, तो बेनिफिट ऑफ यू कैन से एक्सपोजर टू मीडिया इज़ वेरी लेस। एंड ये भी हमने देखा था कि एक विलेज टू विलेज इतने डिफरेंसेस है कि देर आर मेनी लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ विलेजेस वेरी, so that is a problem because their people, they communicate in their localite languages only. Low level of literacy also we can say, which is very low, and market communication में इससे problem होता है, print media भी नहीं पहुंचता है इन तक because of low literacy rate. Seasonal demand, because they are gambling with the monsoon, they are agricultural prone areas, so we can say that seasonal demand exists in rural areas, because in season if you see, they have the harvest, they have good standard of living, एंड वाइस वर्सा। अगेन एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है मॉनसून पे, और रूरल कंज्यूमर पूरा एक तरह से पहले तो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर डिपेंड है मॉनसून पे, ऊपर से सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएटिंग डिमांड पैटर्न्स एंड द ओवर यू कैन से रिलायबिलिटी फैक्टर इज वेरी लेस। फ्यूचर ऑफ रूरल मार्केटिंग की अगर बात करें तो मैनी बिजनेसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव रियलाइज्ड दैट सर्विंग रूरल मार्केट इज नॉट अबाउट सिंपली सेलिंग द प्रोडक्ट्स। यस, बिकॉज सिर्फ सेल करना प्रोडक्ट को रूरल मार्केटिंग नहीं कर कहते हैं, और रूरल मार्केटिंग में सिर्फ सेल करना प्रोडक्ट से नहीं चलेगा, वहाँ पे जनरली डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी पड़ती है और वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमने देखा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें जो आती हैं इन गोइंग कमर्शियल विद रूरल एरियाज, वो कि बहुत बड़ा चैलेंज है इन मेकिंग प्रॉफिट एंड रीचिंग दीज रूरल मासेस। 3 चीज़ों पे फ्यूचर निर्भर है रूरल अप्रोचेस का, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इनटू सोशल एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये 3 चीज़ें अगर हैंड इन हैंड फास्ट होंगी
तो हम लोग कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग का जो दायरा होगा वो इंक्रीज होगा, इनोवेशन आनी चाहिए वहाँ पे। कंपनीज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें उन्हें फिलहाल शॉर्ट रन के लिए प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना पड़ेगा इन एरियाज में, ताकि रूरल कंज्यूमर कंपनीज के क्लोज आ सकें विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स, विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप्स एंड इंटरनेट। तो ऐसे केस में कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सबसे पहले काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट एलिमेंट को थोड़ा वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। So this is all which is mean that for success and long term survival in rural areas is a very very big challenge for companies. बात करेंगे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये भी देखी गई हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी ऑल्सो। थ्री थिंग्स, मार्केट्स का कॉम्पिटिटिव होना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना मतलब इनकम एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना। So considering the rural poverty and rural environment, all these three things have to boost up their economic growth and reduce the poverty there. But what we have seen that people are engaged more or less in agricultural production, and ऐसे केस में तीनों sectors, that is involving government, private and public sector, joint sector, they have to reduce the poverty, which can include, ये सब क्या इंक्लूड करेंगी, किसके थ्रू हो सकता है ये सब। फर्स्ट चीज जो है वो थ्रू इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब सर्वे करना, इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करना रिलेटिंग टू रूरल पुअर्स। तो रूरल पुअर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरह से एकजुट होकर स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। वी कैन से दी first problem, the half the problem is solved if you know about the problems of rural areas, very first. Second, focusing on building assets. Now why building assets? Because government should do what, they should see what poor people need the most. So they need agricultural land, they need other resources, they need credit from government, they need health and education. So all and all together, we have to create, government has to create such ecosystem which provides them with a handful of assets and the empowering them so that they can come out of the poverty. Then right to adequate water and land, yes this is very important, because broadly अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखी गई है वो स्मॉल एंड पीजेंट फार्मर्स की यही है कि उनको लैंड के साथ टॉयल किया जाता है, वो लैंडलेस एक तरह से बॉन्डेड लेबर बन गए हैं। टेनेंसी लॉज हमारे देश में अच्छे नहीं थे, और लैंड के छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स होके छोटी छोटी लैंड्स पे वो लोग जब भी फार्मिंग करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में सबको एडिक्वेट लैंड और वाटर जो हो वो उपलब्ध हो, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सके, और वो टेनेंसी लॉज वगैरह पे जो है वो ज़्यादा काम करे गवर्नमेंट। Then basic healthcare and literacy, this is most important again, because food, clothing, shelter, उसके बाद जो दो basic needs और जुड़ी है वो है education and health। तो ऐसे केस में व्हाट वी आर सीइंग दैट रूरल पुअर, उन लोगों का ह्यूमन कैपिटल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो तभी ही कैपिटलाइज हो सकेंगे जब भी उनके पास इम्यूनिटी होगी, जब भी उनके पास अच्छा पानी होगा, फैमिली प्लानिंग एडिक्वेट होगी, एजुकेशन उन तक पहुंचेगा, ट्रेनिंग होगी, और पर्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन तक ये सब चीज़ें पहुंचेंगी। Then also when we talk about local involvement, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एसोसिएटेड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम, जो भी असेट्स एसोसिएटेड है हेल्थ और एजुकेशन के, वो प्रॉपरली फंड होने चाहिए, टारगेट ग्रुप्स तक वो पहुंचने चाहिए। तो एक तरह से पॉलिसीज ऐसी डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर अकाउंटेबल होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें लोकली लोगों तक पहुंच रही हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में। सिर्फ मेयरली बिल्डिंग स्कूल इज नॉट इनफ, बट चैनलाइजिंग पीपल इनटू दो स्कूल्स बाय प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स। हम लोग देखते हैं बहुत अच्छा ये सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील्स है, जिसके वजह से रूरल मासेस को आजकल इंड्यूस किया जाता है कि वो लोग कंपलसरी एजुकेशन करें।
Providing infrastructure, yes, this is also very important. As I rightly said, that it, first of all, we require land and building, we require proper infrastructure relating to transportation, warehousing, communication, also some support services like research and extension, वो उन सब की ज़्यादा ज़रूरत है. सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर फंड किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पॉलिसीज जो हैं उनको अगर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो बराबर से फ्लो में इम्प्लीमेंट भी होंगी. देन टारगेटेड क्रेडिट, ये सबसे बड़ी समस्या है. वी हैव सीन द एफर्ट्स ऑफ SHGs, माइक्रो फाइनेंसिंग, नबार्ड, RRBs की वो क्या करते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट उन तक, रूरल पुअर तक उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए. बिकॉज जितने भी पुअर पीपल हैं उनकी मेन समस्या है कि उनको जो लोन्स मिलते हैं वो बहुत ही हाई रेट से मिलते थे मनी लेंडर से, साहूकार से. तो जो भी रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स गवर्नमेंट ने किए रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू पुअर पीपल, वो हमने एग्जाम्पल्स देखे जैसे RRBs, नबार्ड एक्सेट्रा. तो टारगेटेड क्रेडिट उन लोगों तक, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में लिंक. तो ऐसे केस में लोन एंड क्रेडिट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, यू कैन से, सिक्योरिटी मेजर और adequate measures to reduce the poverty in them. Then public works program. Now why public works program? Because large and increasing proportion of rural poor, they depend on wage labor, मतलब डेली का हैंड टू माउथ लोग हैं. तो ऐसे केस में हैंड टू माउथ लोगों के पास कोई असेट होता नहीं है, ना ही कोई और साधन होता है उनके सोर्स ऑफ इनकम को हमेशा स्टेबलाइज करने का. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ पे पब्लिक वो प्रोग्राम्स जो है वो अंडरटेक करने चाहिए, ताकि वहाँ पे जिन लोगों के पास एटलीस्ट फार्म्स नहीं है वो वहाँ पे काम करके कमा सकें. तो इससे भी क्या होगा कि उनका जो बार्गेनिंग पावर होगा, उनके पास पैसा आएगा और उनका बार्गेनिंग पावर जो होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा. तो ऐसे केस में एटलीस्ट उन तक खाना पहुंचेगा. और ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेगा पब्लिक वर्क प्रोग्राम, एक्सटेंशन इसका क्या है, फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम, फूड असिस्टेंस प्रोवाइडेड थ्रू स्कूल्स, मैंने मिड डे मील की बात की, हेल्थ केयर क्लिनिक्स, कम्युनिटी सेंटर्स, कैश ट्रांसफर, डिसेंट्रलाइज एंड टारगेटेड प्रोग्राम्स नीड टू बी वर्क. तो ऐसे केस में दिस इज ऑल अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार रिलेटिंग टू, वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोसाइटी. सो चैलेंजेस में आया transportation, warehousing, underdeveloped market, no media exposure, you can say diverse background when it comes to languages and customs, low literacy level, seasonal demand. और फ्यूचर क्या कहता है, फ्यूचर ये कहता है कि सब सेक्टर्स को मिलके धीरे धीरे यहाँ पे कंपनीज को फॉरगो करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म विजन. गवर्नमेंट को अलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जिसमें व्हाट कैन बी हेल्पफुल, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है. इंफॉर्मेशन गैदर करो, पहले सर्वे करो रूरल एरियाज का, फिर फोकस करो ऑन बिल्डिंग असेट्स, फिर उसके बाद एडिक्वेट लैंड एंड वाटर पहुंचाओ उन तक. बेसिक हेल्थ केयर और लिटरेसी फैसिलिटी होनी चाहिए उपलब्ध हर एक रूरल पीपल को. लोकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना है उनको, क्रेडिट्स पहुंचाने हैं, लोन सिस्टम एक्टिव करना है, लैंडिंग सिस्टम, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम क्रिएट करने हैं. तो ये सब जो है ये अगर बराबर से इम्प्लीमेंट और फॉलो हुए, we can say that future of rural marketing will of course increase. Therefore we have seen this heading as the future and challenges and future of rural marketing. समरी में देखें तो सबसे पहला, अडल्ट्रेशन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. दिस इज पोजिंग द सीरियस हेल्थ risk to many people in India, and we have observed that in every product there is adulteration. Basically this has been seen. Food is one basic necessity for sustainability or sustenance of life. Food adulteration is one of the serious challenges in Indian society. Unfair business practices, what it includes, ये क्वेश्चन आ सकता है. It includes misrepresentation, false advertisement,
Then we can talk about false representation of goods. Also, when we talk about tired selling, false free price and gift offers which are given to consumers. Also, deceptive pricing, non compliance with manufacturing standards. सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो इनकम्पास करता है कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल विद इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. Unreasonable price means when recycled product cost is greater compared to the material cost. तो ये सब जो था शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से एक्सपेक्टेड है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड, डिस्क्राइब अनरीजनेबल प्राइस, डिस्कस द टर्म FSSAI, what do you mean by adulteration, analysis of socio-cultural factors of rural consumers. लॉन्ग क्वेश्चंस में जो एक्सपेक्टेड है वो है, राइट अ नोट ऑन अडल्ट्रेशन इन रूरल पीपल, write a note on unfair warranties and guarantees in rural people. In rural market, how consumers are facing short wait and measures. Write a note on food adulteration and explain challenges faced by rural marketing. So all in all, this particular chapter, it revolves around five basic things. One, food adulteration. देन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमने देखे, उसके कुछ पेक्युलरिटीज देखे जो कि ऑब्जर्व किए गए हैं, कायदा कानून देखा उससे रिलेटेड. देन शॉर्ट वेट एंड मेजर्स, इसमें भी हमने देखा कि गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या कहता है, व्हाट आर दी एक्ट्स. अनफेयर वारंटीज एंड गारंटीज में सबसे पहले अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में देखा और फिर देखा व्हाट इज द डिफरेंस इन वारंटी एंड गारंटी इन शॉर्ट, एंड ऑल्सो हाउ वन कैन गो अबाउट वारंटीज एंड गारंटीज. अनरीजनेबल प्राइसिंग के बारे में हमने कंसिडर किया कि कैसे चीटिंग की जाती है बाय क्लेमिंग फॉल्स प्राइसिंग. challenges and future of rural marketing में सबसे पहले we have learned about the challenges which falls right from the transportation, warehousing, language problem, inadequate media coverage, underdevelopment, low level of literacy, seasonal demand. फ्यूचर में हमने देखा कि how we can be when we can have win-win situation in both urban and rural areas. It is only and only through the unanimous efforts of government, private sector and joint sector, and it could be done through information gathering focusing on building asset, right to adequate land and water, basic health care and literacy programs, local involvement, credits and loans, lending facilities, public works program. So all in all, this particular chapter is about how to overcome these challenges and how to ensure the good future in rural marketing. But before that, we have also seen that what are the grave problems of rural consumers when it comes to adulteration, when it comes to short weight and measures, when it comes to unfair trade practices, when it comes to warranties and guarantees, when it comes to unreasonable pricing. क्वेश्चन आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू एक्सप्लेन full concept along with its pros and cons, along with the examples, along with some kind of references given to act. And short answers may we have to only explain and elaborate the concept. One or two example is sufficient, but this particular question which is talking about challenges and future of rural marketing, this could be asked in the brief and in descriptive mode at that particular time. All the challenges with main synoptic points and all the you can say the future of rural marketing relating to various measures which could be involved, these also with the help of points we have to explain. And also we have discussed in the lecture what are the short
questions and what are the long questions. These are some of the MCQs which can be asked. MCQs में खासकर 4 options दिए जाते हैं. We have to select one best and one appropriate option, and we have to write the answer and also fill in the blanks and true or false and match the followings are asked. So this was all about the problems of rural consumers, and with this we have discussed these all 5 objectives. Thank you.